गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर जनरल प्रिंसिपल्स एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। कुछ डेफिनेशंस 1 मार्क की पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल मिनरल्स क्या होते हैं, ओज क्या होते हैं, फ्लक्स, गैंग, स्लैग, मेटलर्जी क्या होती है। कुछ नोट्स पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आपको कुछ ओज के फॉर्मूलाज आने चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। और इसके अलावा यूजेस ऑफ मेटल्स में से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज, सबसे कम रिएक्टिव जो होगा, गोल्ड। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट इज ऑक्सीजन। सबसे अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है, जबकि सबसे अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है, जो कि इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स 3rd नंबर पे आता है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट इज CuFeS2। Malachite is an ore of copper. The formula is CuCO3 CuOH twice. Cinnabar is an ore of mercury. Formula is HgS. The process employed for concentration of sulfide ore is froth flotation. जब भी सल्फाइड ओर्स होते हैं तो हम फ्रॉथ फ्लोटेशन से उनकी कंसंट्रेशन करते हैं, यानी इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं। कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट आर Fe2O3. In which of the following minerals aluminium is not present? So answer is fluorspar. बाकी सब aluminium के ores हैं। Magnetite is an ore of iron Fe3O4. Iron pyrite is an ore of iron FeS2. Smelting involves reduction of metal oxide with carbon. Sphalerite is an ore of zinc. Zinc blend ZnS को हम sphalerite कहते हैं। Iron carbonate FeCO3 is siderite. Bauxite is an ore of aluminum Al2O3.2H2. The ores are concentrated by froth flotation process are sulfide ores. Which of the following is not an ore of iron? So कैलामीन जिंक कार्बोनेट होता है, बाकी सब आयरन के ओर्स है। ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड इट कन्वर्ट्स टू जिंक ऑक्साइड। विच प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ जिरकोनियम? इट्स वैन आर्केल प्रोसेस। इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। जिंक ब्लेंड इज एन ओर ऑफ जिंक। Thomas slag is calcium phosphate. Composition of brass is copper 60%, zinc 40%. Mons process is used for refining of nickel. In which of the following the ore does not match with the metal? This is correct, this is correct, this is correct. Zinc. Siderite iron का ore होता है। The chief constituents of German silver alloy are copper, zinc and nickel. Titanium can be obtained by Van Arkel method. In which of the following ore does not match with the metal? So it's copper, gypsum, क्योंकि gypsum calcium carbonate dihydrate होता है। Coke is used in metallurgical process chiefly as a reducing agent. Pyrolusite is an ore of
manganese. Matte is a mixture of copper sulfide and iron sulfide. Smelting के दौरान ये mixture हमें obtain होता है. Calamine is an ore of zinc, ZnCO3. Which of the following metal occurs in free state? Gold and platinum. Blister copper is copper containing some impurity. Which one of the following ore is best concentrated by froth flotation process? So zinc blend क्योंकि वो sulfide ore है. During extraction of iron, slag produced is calcium silicate. An ore of zinc that does not contain oxygen is zinc blend. It contains sulfur, ZnS. The substance which is added to remove impurities is known as flux. Impurities के साथ combine करके flux बनाता है slag और impurities को हम कहते हैं gang. So answer is flux. Electrochemical process is employed to extract sodium. The main function of roasting is oxidation. In metallurgy, flux is a substance used to convert infusible impurities to fusible mass. Van Arkel method of purification of metals involves converting the metal to a volatile stable compound जो high heat पे फिर break करवाया जाता है. Which one of the following metal is extracted by thermal reduction process? So answer is copper. When the ore limestone is heated, carbon dioxide is given off. This operation of metallurgy is known as calcination. CaCO3 heat करके CaO और CO2 देगा. Magnetic separation is used for increasing concentration of hematite ore of iron. The extraction of which of the following metals involves best summarization? Copper. Goldsmith aluminothermic process reducing agent is aluminium powder. The metal extracted by cyanide process is silver. Cryolite is Ne3Al(F6) and is used in electrolysis of alumina for lowering the melting point of alumina. In blast furnace, the maximum temperature is in the zone of combustion. The purification of alumina is done by Beer's process. Electrolytic reduction method is used for extraction of highly electropositive elements. Silver containing lead as an impurity is purified by cupellation. The ore having two different metal atoms is copper pyrite, इसमें CuFeS2, copper और iron, ये दो metals. Next part is define. So definition of minerals. Minerals are naturally occurring chemical substances in form of which the metals exist in the earth's crust. Ores are those minerals from which metals can be conveniently and profitably extracted. Flux is the chemical added to remove impurities from an ore. Flux will combine with the impurity to form slag. The impurity present in ore, which needs to be removed from the metal ore, is called gangue. During extraction of a metal from its ore, the chemical flux is added to remove the impurities present in the ore, and the fusible mass that is formed is called slag. The process by which a metal is conveniently and profitably extracted from its ore is called metallurgy. Then 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन.
तो write a note on calcination. Calcination is the process of heating an ore in absence of air to convert the ore into metal oxide. जबकि रोस्टिंग में हम ओर को इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड. कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स में होता है, रोस्टिंग जो है सल्फाइड ओर्स में की जाती है. एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे सो दैट इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएं और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए ओर. वैन आर्केल method. The process consists of heating zirconium or titanium metal in iodine vapors to form zirconium tetraiodide. अगर टाइटेनियम को कर रहे हैं तो टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड बनाएगा. ये वोलाटाइल होते हैं तो इसके वेपर्स जो हैं वो मूव कर जाएंगे जबकि इम्प्योरिटी वहीं रह जाएगी और इस तरह से हम इम्प्योर जिरकोनियम को प्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अब ये जो जिरकोनियम आयोडाइड टेट्राआयोडाइड के वेपर्स हैं इनको हम एक टंगस्टन फिलामेंट पे हायर टेम्परेचर पे इसको हीट कराएंगे ताकि ये वापस अपने प्योर मेटल और आयोडीन वेपर्स में डिकम्पोज हो जाए. लीचिंग इज अ केमिकल मेथड of separation. The ore is treated with a suitable chemical reagent which will dissolve the ore, but the impurities are not dissolved. Then we filter to separate the impurities from the ore. This process is called leaching. Bauxite की leaching इसी तरीके से कराई जाती है. उसमें हम NaOH डाल देते हैं, एल्यूमिना उसमें डिज़ोल्व कर जाएगा, सोडियम मेटाल्यूमिनेट बनाएगा जबकि इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व नहीं करेंगी. फिल्टर करके इसको अलग कर लेंगे और बाद में इसको रिकवर कर लेंगे. फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनसे इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए हम उसको पाइन ऑयल और वाटर के मिक्सचर में मिक्स करके कंप्रेस्ड एयर को पास करके फ्रॉथ जनरेट करते हैं. हमारा जो ओर है जिसको प्योरीफाई करना है वो फ्रॉथ में ऊपर आ जाता है जबकि इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाती हैं और इस ओर को सेपरेट कर लिया जाता है और इस तरह से ओर प्योरीफाई हो जाता है. इस मेथड को फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहा जाता है. मॉन्स प्रोसेस. This process consists of heating the metal with a stream of carbon monoxide. जैसे निकल को मोनोक्साइड से हीट किया इस टेम्परेचर पे टेट्राकार्बोनिल निकल बनेगा जिसको फर्दर हायर टेम्परेचर पे ये वेपर के फॉर्म में होता है. इट विल मूव टू अ प्लेस वेयर एज द इम्प्योरिटी विल नॉट मूव और बाद में इसको हायर टेम्परेचर पे डिकम्पोज करा के प्योर मेटल को ऑब्टेन किया जा सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड को डिकम्पोज करा के. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में इम्प्योर मेटल को हम एनोड बना देते हैं, प्योर मेटल को हम कैथोड बना देते हैं और इसको हम एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे. करंट का पास करने पर एनोड इलेक्ट्रॉन्स देता है और सॉल्यूशन में आ जाता है जबकि सॉल्यूशन से जो आयंस होते हैं फॉर एग्जांपल कॉपर वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे जबकि इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व होते मेटल से निकल के नीचे ही बना देती हैं. इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहा जाता है. जोन रिफाइनिंग. दिस मेथड is based on the principle that melting point of a metal is lowered due to the presence of impurities. The melting point of metal is lowered due to presence of impurities in it, and impurities are more soluble in the melt. Impurities are more soluble in the melt
than the pure metal. तो हम एक रॉड के ऊपर से जब सर्कुलर हीटर पास करेंगे तो जैसे जैसे हीटर मूव करेगा मेटल मेल्ट करता जाएगा और रीसॉलिडिफाई होता जाएगा। इम्प्योरिटीज़ जो हैं मोल्टन मेल्ट के साथ आगे जाते जाएंगे, जबकि जब वो सॉलिडिफाई होगा तो विदाउट इम्प्योरिटीज़ होगा। इस प्रोसेस को नंबर ऑफ टाइम्स में रिपीट करते हैं तो जो हमारी रॉड है इट डिवाइड्स इनटू 2 zones, अ प्योर वन एंड वन कंटेनिंग इम्प्योरिटी, और इसको यहाँ से सेपरेट कर लेंगे और इस तरह से जोन रिफाइनिंग से जर्मेनियम जैसे मेटल्स को हम प्योरीफाई कर सकते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम को। रोल ऑफ क्रायोलाइट इन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो जो एल्यूमिना है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अबाउट 2273 केल्विन, और इस मेटल यहाँ इस टेम्परेचर तक लाते लाते हम ये जो मेटल है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा 2073 केल्विन और वेपराइज कर जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करें, और उसको करने के लिए हम क्रायोलाइट उसमें डालते हैं। क्रायोलाइट लोअर्स the melting point of alumina to about 1223 Kelvin। तो इस तरह से ये प्योर एल्यूमिनियम को एल्यूमिना से एक्सट्रैक्ट करने के दौरान क्रायोलाइट को यूज़ किया जाता है इन लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल्सो इन मेकिंग इट मोर इलेक्ट्रोलिटिकली कंडक्टिंग। वेरियस फॉर्म्स ऑफ आयरन। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ आयरन आर पिग आयरन और कास्ट आयरन विच कंटेन्स 4% कार्बन। रॉट आयरन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, इसमें सिर्फ 0.12 से लेकर 0.25% तक कार्बन हो सकती है, जबकि स्टील में इम्प्योरिटीज इन दोनों के बीच की होती हैं और दूसरे मेटल जैसे कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज या मॉलिब्डेनम इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमने अभी किए हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, राइट और नोट ऑन द प्रोसेस। ये प्रोसेसेस आप लर्न कर लीजिएगा। देन आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिगार्डिंग फॉर्मूला ऑफ एन ओर। तो व्हाट इज कॉपर पायराइट, CuFeS2, malachite, CuCO3, CuOH twice, cinnabar HGS, bauxite Al2O3.XH2O, magnetite Fe3O4, iron pyrite FeS2, sphalerite is zinc sulfide, siderite is FeCO3, calamine is ZnCO3, hematite is Fe2O3, cryolite is Na3AlF6 and pyrolusite is MnO2। ये कुछ important ओर्स और उनके फॉर्मूलाज हम यहाँ पे लेके आए हैं, तो इनको आप लर्न कर लीजिएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। एक और क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, यूजेस पूछ लिए जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम की यूजेस हैं, उसकी फॉइल को रैपिंग के लिए या फूड को पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम डस्ट को पेंट्स और लैकर्स में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम को हम क्रोमियम और मैग्नीशियम जैसे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, क्रोमियम और मैग्नीशियम की एक्सट्रैक्शन के लिए। और एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर भी है, तो इसको कंडक्टिंग अलॉय के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इसका अलॉय लाइट इन वेट होता है और बहुत काम का होता है। इसी तरह कॉपर जो है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी वायर्स बनाई जा सकती हैं और इसके अलॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज और कॉइनेज मेटल्स। तो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, आप इनको कर लीजिएगा। थैंक यू and have a nice day. If you like the video, please do share and subscribe.